सौभाग्य की धारा, जल संवर्धन, ग्राम समृद्धि का प्रमुख स्तंभ, ये विषय रहेगा। इस विषय पर हम आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी के विचार जानेंगे और उनसे सवाल करेंगे श्री नीरज आहूजा जी। हम आभारी हैं सुश्री निर्मला भूरिया जी के। एक बार जोरदार तालियां उनके प्रति आप सब आभार प्रकट करते हुए। उनकी उपस्थिति से इस आयोजन को गरिमा मिली, उनके वक्तव्य से हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इस सभागार में आप देख रहे होंगे कि दर्शक दीर्घा में बाईं और दाईं ओर, दोनों ही ओर प्रदेश के कोने कोने से हमारी बहनें आई हैं, दीदियां आई हैं, जो जन कल्याण के लिए, ग्राम विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। एक बार आपसे आग्रह करेंगे, इन दीदियों के लिए भी तालियां आप सब बजा दें। इनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और शासकीय योजनाएं तो चलती हैं जो जन कल्याणकारी होती हैं, लेकिन ऐसे जहां पर दीदी लोग उन योजनाओं को साकार करने की दिशा प्रदान करती हैं, अपने जनसंपर्क से उसे सफल बनाने की दिशा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाती हैं, हम उन दीदियों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अब जब मंच तैयार है, हम सादर आग्रह करेंगे। आग्रह हम नीरज आहूजा जी से करेंगे कि वे सादर राजेंद्र सिंह जी को पुनः मंच की ओर लाएंगे बस कुछ ही क्षणों में, और बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। इस बातचीत का विषय, जैसा कि हमने बताया, सौभाग्य की धारा, जल संवर्धन, ग्राम समृद्धि का प्रमुख स्तंभ। इस विषय पर विस्तृत चर्चा होगी। सवाल जवाब के माध्यम से नीरज आहूजा जी उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और उससे कहीं ना कहीं हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो अगला सत्र होगा उसे संचालित करेंगे प्रोफेसर HM मिश्रा जी, जिसमें बस कुछ ही क्षणों के लिए राजेंद्र जी यहां पर थोड़ा सा विश्राम लेकर, यानी कि मुख्य अतिथि महोदय को विदा करके मंच पर पुनः होंगे। हम वीडियो के लिए आग्रह करते हैं हमारे। As India progresses into the 21st century, Transform Rural India is passionate that no one should be left behind. There are 100,000 stranded villages in India where marginalized people don't have the same opportunities or chances to succeed as many of us do. We want to change that. But we recognize intergenerational poverty is a multi-headed challenge that can't be tackled with a single siloed focus. That's why TRI is a multi-dimensional solution design practice. We don't specialize in one area. We have a team of specialists, of practitioners in all the vital areas of rural development. For instance, if a woman isn't eating healthy foods or given ample portions when she becomes pregnant, her child will be disadvantaged right from the start of life. That's why we focus not only on health and nutrition, but also on gender equality. If that child doesn't have teachers supported at school or a community interested in its children's education, never mind necessary infrastructure like functional toilets, that child will become disadvantaged. But an education is of little use if opportunities to build sustainable employment don't exist. That's why we build up capacities. But they're not only built up to create income, but also greater agency to voice concerns and help shape the future of their community. Of course, a changing landscape and climate will impact rural India more than others. So we help communities prepare. Our practitioners have created the thoughtful Taraki tri-focal approach to development with 3 fundamental areas of practice. Knowing that most opportunities and services for rural Indians start with the government,
Our public policy and action and nudge units are embedded within government, from central to state, and of course, local offices. They help develop the best processes to get villagers the services and support guaranteed to them in the Constitution. But no initiative begins without first asking the communities what they want and need. Then we design intersectional solutions and pilot programs based on those needs. And if they work, we scale up across more blocks and districts for true impact. But change isn't really sustainable unless enterprises are created and supported by supply chains and markets. Our primary work is with India's 100,000 stranded villages in Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, and Uttar Pradesh. But we also create rural development solutions in Bihar, Assam, and Maharashtra. By designing Samaj, Sakar, and Bazaar solutions for rural development, TRI is building long-lasting bridges that will help bring equal opportunities to rural Indians, turning languishing localities into flourishing communities. हम 47 को जब पहुंचेंगे, हम दुनिया की नंबर 1 और 2 इकोनॉमी में पहुंचेंगे साइज में। और दुनिया हमको कैसे दिखता है? अगर हमने दुनिया को बढ़ाना है, दुनिया की समाज को बढ़ाना है, अपनी समाज को बढ़ाना है, नंबर को छोड़ दीजिए, लोगों की बातें सुनिए। The pyramid of aspiration has become flat. Today, a 15-year-old son of a very rich person and a poor person's son in a very remote village have the same dream. It is not as if rural India has to migrate and the share of urban population has to increase. It can well be the case that rural India gets well connected. नगर निगम हमारा जब साफ हो सकता है, सुंदर दिख सकता है, तो गांव को ऐसा क्यों नहीं बनाया जा सकता? The India Rural संकेत मिला है कि ये सत्र बस कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है, तो आप सबसे हम आग्रह करेंगे कृपया स्थान ग्रहण कर लें और शांति बनाए रखें। श्री राजेंद्र सिंह जी जो कि एक महत्वपूर्ण विषय पर बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। बहुत से प्रश्न होंगे, कुछ ऐसे प्रसंग होंगे जो हम सबको प्रेरणा देंगे। तो राजेंद्र सिंह जी बस कुछ ही क्षणों में हम उनका यहाँ पर मंच पर अभिनंदन करेंगे, उन्हें आमंत्रित करेंगे और उनके साथ नीरज आहूजा जी सवाल जवाब करेंगे। हम बस बाट जो रहे हैं, दरवाजे से उनकी एंट्री होगी और हम उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। बाहर जो लोग टहल रहे हैं उनसे आग्रह है कि सभागार में स्थान ग्रहण करें। ये सत्र शुरू होने ही जा रहा है क्योंकि ये हम सबके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत लाभप्रद है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए ये जो चर्चाएं होने वाली हैं, जिस विषय पर प्रकाश डालेंगे राजन जी, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बाहर घूम रहे हमारे तमाम
साथियों से अनुरोध करेंगे कि वो सभागार में आसन ग्रहण करें अपना। आपको ये जानकारी देते हुए हम हर्षित हैं कि दूसरे सत्र में लगभग 4 बजे के आसपास मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का शुभागमन होगा, जो कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के। उनकी उपस्थिति और उनका उद्बोधन भी इस आयोजन में होगा। और यहाँ चर्चा होगी। माइक्रोफोन की व्यवस्था देख लें। एक माइक्रोफोन तो है। बस एक पल की प्रतीक्षा। और सभागार में पुनः आगमन हो गया है जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह जी का। हम उनसे विनम्र आग्रह करेंगे मंच पर ही स्थान ग्रहण करें, और नीरज आहूजा जी से आग्रह करेंगे कि वे सादर श्री राजेंद्र सिंह को मंच पर लेकर आएं, उनकी चर्चा आरंभ हो। यूं तो उनके जीवन की यात्रा के बहुत ही सुनहरे पृष्ठ हैं, जिन्हें कम समय में व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी संक्षेप में हम राजेंद्र जी के बारे में आपसे साझा करना चाहेंगे कि भारत के जल योद्धा, लोकप्रिय रूप से जल पुरुष के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र सिंह एक प्रसिद्ध नदी पुनर्जीवक और पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर सिंह को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1994 का इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, 2001 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 2005 में ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार, 2015 में पानी के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज से भी आपको अलंकृत किया जा चुका है। डॉक्टर सिंह ने विकेंद्रीकृत सामुदायिक नदी प्रकृति संरक्षण के लिए समुदायों को सशक्त बनाने और इसके बारे में जागरूकता पैदा करने में अपने 5 दशक पूर्ण किए हैं। उनका पानी का सिद्धांत जलवायु है और जलवायु का सिद्धांत पानी। उनके नेतृत्व में किए गए कार्यों से सिद्ध होता है ये कार्य जलवायु शमन, अनुकूलन और लचीलेपन के उत्कृष्ट मॉडल हैं। युवाओं के साथ उनकी सहभागिता ने पर्यावरण और सतत विकास के मुद्दों पर युवाओं की बढ़ती चिंता और कार्रवाई को प्रेरित किया है। हम आप सबकी करतल ध्वनि से एक बार फिर श्री राजेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करते हैं, जोरदार तालियां। और हम नीरज आहूजा जी का भी अभिनंदन करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं इस चर्चा को आरंभ करें। विषय हम पुनः स्मरण दिला दें आपको, सौभाग्य की धारा, जल संवर्धन, ग्राम समृद्धि का प्रमुख स्तंभ। धन्यवाद। तो आप सभी का एक बार दोबारा से स्वागत है इंडिया रूरल कोलॉक्वी में। ये जैसा कि आपने सुना 1 से 8 तक का एक समारोह है जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे खुशहाल और समृद्ध बनाएं उसके ऊपर चर्चा करते हैं अलग अलग जगह पर। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह पर एक साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा इस सत्र में। और साथियों, आपने जैसे सुना सभी मुख्य अतिथियों को और अतिथियों को भी, पानी हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण, हमारे जीवन में, हमारे समुदाय के लिए, हमारे समाज के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और हमने सुना कि सभ्यताएं जो हैं पानी के इर्द गिर्द ही बढ़ी हैं, उनका उत्थान पानी की वजह से हुआ है। तो अगर हम भारत में देखें तो भारत में अगले कुछ सालों में हमारा भारत काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहा है।
एक दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है जीडीपी की भारत की। और अगर पानी की मांग को देखें तो अगले 10 से 15 सालों में 30 से 40% मांग बढ़ने का अनुमान है। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश को भी देखें तो मध्य प्रदेश में लगभग जो ये राज्य है ये पूरे प्रदेश में एक अग्रणी राज्य रहा है। और यहाँ जो कृषि क्षेत्र है, जो खेती का क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है पिछले 10 सालों में, 15 सालों में 9% की औसत से प्रदेश बढ़ा है। और खेती में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे मुख्य चीज़ है पानी। तो अगर हम लोग उसको भी देखें मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में, जो इरिगेशन, जो सिंचाई के लिए पानी का उपयोग होता है, लगभग 2/3 उस पानी का जो स्रोत है वो ग्राउंड वाटर है। हमारे पास में सरफेस वाटर भी है, पर 2/3 ग्राउंड वाटर से आता है। और अब जैसे आपने सुना भी पहले, लगभग मध्य प्रदेश में 95 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन का लेवल आ गया है ग्राउंड वाटर का। हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। इसी तरह अगर देखें 2016 में मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 46 जिले में सूखा से प्रभावित हुए थे। इसी तरह 2019 में भी लगभग 36 जिले सूखा से प्रभावित थे। तो पानी एक बड़ी समस्या है। और अगर हम लोग को समृद्धि चाहिए, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर समृद्धि को देखना है, तो बगैर पानी के ये समाधान नहीं हो सकता। तो आज हम लोग इस सत्र में समझेंगे श्री राजेंद्र सिंह जी से, क्योंकि उन्होंने कई सारी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें बताई अपने उद्बोधन में, शिक्षा और विद्या का, और हमारा जो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको हम लोग थोड़ा सा और गहराई में जाकर के समझेंगे कि क्या एक्चुअल में परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं और कैसे इसको देखा जाए। तो राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और परिचय की जरूरत नहीं है, 15,000 से ज़्यादा संरचनाएं आपने स्थापित की हैं, नदियों को जीवित किया है, तालाबों को जीवित किया है। मैं शुरुआत करूंगा चर्चा की आपसे। अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल पाएं कि ये जो पूरा हम लोग मुद्दा देख रहे हैं जल संरक्षण का, उसको लेकर के क्या आपका फिलॉसफी रहा है, कैसे आप इस मुद्दे को देखते हैं? एक तरफ तो जल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरफ, और दूसरी तरफ हम उसका अति दोहन कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आपकी क्या फिलॉसफी है और क्या कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट्स हैं आपकी, किस तरह से अप्रोच किया जाए इस मुद्दे को भारत के देश में और खासकर ग्रामीण के संदर्भ में? आज 1 अगस्त लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो आज का दिन था जब उन्होंने पहली बार ये शब्द कहे थे। तो यदि पानी के बारे में सोचना हो तो फिर ये सोचना होगा कि बादल से निकली पानी की हर बूंद पर मेरा, मेरे पेड़ पौधों का, मेरी धरती का, मेरी नदी का, मेरे समुद्र का, सबका अधिकार है। और ये उनको जन्म सिद्ध अधिकार मिला है। आज वो अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। मैं जब एक जोहड़ बनाता था, एक तालाब बनाता था, तो राजस्थान सरकार का इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 1954, उसका सेक्शन 55 और सेक्शन 58 मेरे ऊपर लग जाता था। और ये दोनों सेक्शन इतने खतरनाक हैं परशुराम जी, आप जानते हैं कि विदाउट जुडिशियल एक्शन सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, उससे नीचे नहीं, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर इरिगेशन आपको सीधे जेल भेज सकता है। क्योंकि मेरे मस्तिष्क में ये बैठा था कि बादल बनाने का काम कोई सरकार, राजस्थान सरकार ने नहीं किया। बादल बनाने का काम सूरज ने किया। सूरज से निकली लाल गर्मी समुद्र के ऊपर गई और समुद्र के खारे पानी को मीठा करके, डिसैलिनेट करके H2O गैस में बदलकर बादल बनाया। और उस बादल को मेरी जमीन की हरियाली, मेरी खेती की हरियाली और मेरे जंगल की पत्तियों का होने वाला ट्रांस एवोपरेशन, और उस ट्रांस एवोपरेशन से
बनने वाले माइक्रो क्लाउड्स, उन बड़े क्लाउड्स को बुला के मेरे इलाके में बारिश कर देते हैं। इसलिए ये पानी मेरी सरकार का नहीं हो सकता, ये पानी मेरी धरती का है, मेरे लोगों का है और मेरा भी है। इसलिए मैं बिना डरे एक के बाद एक बनाता चला गया। और फिर इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वेंकट चलैया ने को जब पता चला एक दिन कि राजेंद्र सिंह के खिलाफ 377 मुकदमे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा चला नहीं है, मुकदमे हो रहे हैं, उनको नोटिस जाता है, वो जेल भी नहीं भेजा गया, पर उनके खिलाफ ये सब बनता जा रहा है। तो राजीव धवन ने ऐसे ही मेरे वो अरावली केस में ये घटना बता दी कि राजेंद्र सिंह जो इस केस का पिटिशनर है, उसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 1954 के सेक्शन 55 और सेक्शन 58 लगाकर 377 मुकदमे कर दिए। तो पता है वेंकट चलैया साहब क्या लिखते हैं? आपके बाद राजेंद्र सिंह पर कोई भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से पूछे बिना दर्ज नहीं हो सकता। इसके ठीक 6 साल बाद भारत के राष्ट्रपति श्री KR नारायणन को जब ये पता चला कि हम ये काम कर रहे हैं, तो वो तो स्वराज्य को जानने और मानने वाले विद्वान महामहिम थे। उन्होंने हम लोगों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति भवन बुलाया। हमारे गांव के लोगों ने कहा कि देखो भाई, राष्ट्रपति जी को यदि सम्मानित करना है तो वो हमारे गांव में आके करे, हम उसके राष्ट्रपति भवन में सम्मानित होने नहीं जाएंगे। और विधिवत मुझे कहा कि मैं एक ऐसा पत्र महामहिम को लिख दूं। मैंने लिख दिया, मैंने भी सरल भाषा में लिख दिया। मेरी कोई मंशा नहीं थी कि मैं अब महामहिम को ऐसा लिखूं, पर गांव के लोगों ने कहा था, मैंने लिख दिया। महामहिम की भी उदारता देखिए, पत्र मिलने के 20 दिन बाद उन्होंने कहा 28 मार्च को मैं आपके गांव आ रहा हूं। जब ये आदेश राष्ट्रपति जी का आया तो सारे मुकदमे एक रात में खत्म हो गए। कहां खत्म हुए, कैसे खत्म हुए, इसकी कहानी मैं नहीं जानता। इसका मतलब इस देश के अंदर अच्छे कामों को रोकने वाली ताकतें और अच्छे कामों को बढ़ाने वाली ताकतें दोनों चल रही हैं, दोनों जीवित हैं। इस इंडियन डेमोक्रेसी को यदि हम सम्मानित करते हैं तो इस डेमोक्रेसी की एक ही अच्छाई है कि इसमें अच्छाई और बुराई दोनों चल रही हैं, पर कभी कभी बुराई जरा ज्यादा फास्ट होती है और अच्छाई थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जब अच्छाई स्लो हो जाती है तो चारों तरफ बुरा ही बुरा दिखता है। इसलिए पानी का जो संकट है, ये संकट केवल पानी का संकट नहीं है, ये संकट हमारी जीवन जीने की पद्धति और हमारी जीवन दृष्टि और हमारे जीवन के आगे के रास्ते तय करने का प्रश्न है। दोस्तों, जब मैंने काम शुरू किया तब मैं नहीं जानता था कि ये पानी का काम इतना आगे तक जाएगा। तब मैं केवल गोपालपुरा के लोगों को जो बिना पानी होकर उजड़ गए थे, उनको उस गांव में बसाए रखने के लिए कि वो उजड़ के आगे ना जाएं, वो अपने गांव में बसे रहें, इसलिए उनको गांव में पानी का इंतजाम करना है। केवल इस छोटी सी विचार से, केवल इस छोटी सी भावना से काम शुरू किया था और काम भी बड़ी अजीब तरह से शुरू हुआ। चूंकि जब मैं वहां गया तो सब लोग लाचार, बेकार, बीमार होके उजड़ के चले गए थे। गांव में केवल बूढ़े लोग और बूढ़ी लुगाई रहती थी और वो भी सब रतौंधी रोग से ग्रसित थी। शाम के वक्त उनको दिखता नहीं था, 5 बजे की उनको दिखना बंद। सब नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, जो माल न्यूट्रिशन के कारण होती है, वो बीमारी वहां थी। और तब मैं डॉक्टर था, मैंने इलाज करना शुरू किया। मैं तब भारत सरकार छोड़ के ही गया था वहां। भारत सरकार छोड़ के गया तो उन बीमारों के साथ अटक गया और उनका सबका इलाज करने लगा। उनमें सब ठीक हो गए। मांगू काका आपसे मिले थे जब आप आए थे। मांगू काका ने कहा, ओ राजेंद्र, तू काई करे छे? माने था कि दवाई को नहीं चाहे और माने था का पढ़ाई भी को नहीं चाहे। तू या दवाई और पढ़ाई का काम तो बंद कर दे और तू मेरे गांव में रहवे छे ना,
तो पानी का काम कर, नहीं तो बिस्तर बोरिया बांध के गांव छोड़ के भग जा। समझा कितना साफ सुथरा निर्देश था, आदेश था, भग जा, तेरी जरूरत को नहीं छिपाने, तेरी ना दवाई की जरूरत ना पढ़ाई की जरूरत, माने तो पानी चाहिए, पानी। दोस्तों, मुझे पानी का काम करना बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि मेरा जहां जन्म हुआ वहां खूब पानी था। इसलिए मैंने पानी के प्रति ना कोई संस्कार था और ना कोई व्यवहार कुशलता थी, ना दक्षता थी। तो मैंने मांगू काका से कहा, मांगू काका मुझे पानी का काम नहीं आता। बोला अरे तुझे नहीं आता ना, तभी तो तू कर सके। जिन्हें ये पानी का काम आवे छे ना, वो तो अपनी जेब गरम करवा में लगे रहे छे। तुझे को नहीं आवे तो तू कर देगा। तो मैंने कहा मैं कर कैसे दूंगा जब मुझे आता ही नहीं। अरे मैं सिखा दूंगा तुझे, 2 दिन में सिखा दूंगा। तब मैं जवान आदमी था, जवान हुआ ही था, तब मैं जवान क्या था, जवान हो रहा था। तो मैंने कहा काका तू मुझे सिखा देगा तो तू क्यों नहीं करता, भाई सिखाने वाले को खुद करना चाहिए ना। तो मांगू काका की आंखों में आंसू आ गए। बोला अरे यार काम मैं ही करे छा, पर जनाड़े सु गांव में वोट पड़वे लाग्यो ना, गांव बैठ गयो, आधा गांव ऊ तरफ आधा गांव ऊ तरफ, अब गांव साझे का काम को नहीं करे। ये पॉलिटिक्स समझ लो जरा नीरज, तब समझ में आएगा पानी का सवाल। तो मैंने कहा काका फिर जब तेरी नहीं सुनते तो मेरी कोई कैसे सुनेला। बोला तू किसी का ही कोई नहीं छे, और जो किसी का नहीं होता वही सबका होता है। जो किसी का हो जाता है वो तो किसी एक का बनकर रह जाता है, जो किसी का ही नहीं होता वही सबका रहता है। तो मुझे मांगू काका की बात समझ में आ गई और मांगू काका ने सर मेरी 2 दिन में 2 पीएचडी कंप्लीट कराई। 2 दिन में 2 पीएचडी, 2 दिन में 2 पीएचडी शिक्षा में नहीं हो सकती, ये समझ लेना। कोई शिक्षा का कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है जो 1 दिन में पीएचडी करवा देगा, लेकिन 1 दिन में पीएचडी विद्या में हो सकती है। तो मांगू काका ने मुझे पानी की विद्या देना शुरू किया। सबसे पहले मुझे उसने सूखे कुएं में, चमड़े के चरस में बैठा के सूखे कुएं में नीचे डाल दिया 150 फीट गहरे, और 5 मिनट बाद निकाल के पूछा अरे तू कुएं में काई देखा। मैंने कहा काका ये कुएं में तो सीधी सड़क है। सीधी सड़क कहते हैं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर, जो ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल फ्रैक्चर्स होते हैं उनको सीधी सड़क बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में। बोले आठे देख पेड़ कहीं अच्छे। तो जहां कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर होते हैं वहां लंबे पेड़ होते हैं और उन लंबे पेड़ों पर पत्तियां होती हैं। तो उसने मुझे दिन भर में 25 कुएं दिखाए जहां ये कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर थे, वहां लंबे पेड़ लंबी जड़ें, और जहां अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर थे वहां पेड़ ही नहीं थे, वहां केवल कांटों वाली झाड़ियां थी। तो उसने पेड़ों को देख के धरती का पेट जानना सिखा दिया। तो मेरी पहली पीएचडी 25 कुओं से वैलिडेट हुई। शिक्षा में जो पीएचडी मिलती है उसको 3 प्रोफेसर वैलिडेट करते हैं, लेकिन मेरी पीएचडी 3 प्रोफेसरों ने नहीं वैलिडेट की, मेरी पीएचडी 25 कुओं ने वैलिडेट की। 25 कुओं को दिखा के वो समझ गया कि हाँ अब इसको धरती का पेट समझ में आ गया। और मेरी पीएचडी का विषय था सूरज को पानी की चोरी रोकना। सूरज चोरी करता है तो तू, तेरा काम है, राजस्थान में सूरज बहुत चोरी करे है, तुझे सूरज की चोरी रोकना है। और सूरज की चोरी तो जब ही रुक सकती है जब पानी नीचे रहे। तो उसने जहां कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर थे वहां जोहड़ बना दो, जोहड़ बनाने से पानी धरती के पेट में जाएगा, धरती का पेट पानी से भरेगा, तो फिर छोटे छोटे झरने बन के, स्प्रिंग्स बन के नदी बहने लगेगी। तो उसने धरती के पेट की पानी की विद्या सिखा दी और 25 कुएं दिखा के, वो पढ़ाता नहीं था। शिक्षा में पढ़ाया जाता है, कोई पढ़ाने वाला होता है, कोई कुछ सिखाने वाला होता है। विद्या में पढ़ाने वाला नहीं होता सर, विद्या में सीखना पड़ता है, खुद को जानना पड़ता है। वो जो गुरु होता है वो केवल सवाल पूछता है, वातावरण निर्माण करता है कि जिससे उस विद्यार्थी को ज्ञान हो जाए इस बात का। तो ये होने के बाद मुझे पता चल गया, और फिर मैंने अभी तक 14,800 डैम बनाए। वो ऐसी जगह बनाए जिसमें बारिश के दिनों में पानी आता है और फिर उसी वक्त नीचे धरती के पेट में चला जाता है।
और धरती के पेट में से सूरज चोरी नहीं कर सकता। फिर वो पानी जब वाटर लेवल ऊपर आता है तो भर के फिर झरने बहने लगते हैं। इसलिए मेरे 14,800 स्ट्रक्चर से मैंने हिंदुस्तान की धरती पर 17 नदियों को पेरेनियल किया। हमारे पूर्व चीफ सेक्रेटरी श्री परशुराम जी और यार आजकल मैं बुढ़ा हो गया हूँ, नाम बोलने लगे, हाँ विवेक दबे, और एक वो एक और थे, हाँ व्यास जी, और एक और थे, हाँ उमराव जी, उमाकांत उमराव। तो ये चारों की टीम आई थी, तब तो केवल 5 नदियां जिंदा हुई थी जब आप वहां आए थे राजस्थान ये देखने। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान, इसको जिसको साइंस आप बोलते हैं, ये साइंस विद सेंस है, साइंस विद कॉमन सेंस है। इस साइंस में कैलकुलेशन और इक्वेशन डोमिनेट नहीं करती, इस साइंस में सेंस और कॉमन सेंस दोनों डोमिनेट करती हैं। इसलिए कैलकुलेशन और इक्वेशन की जब जरूरत होती है तब बना सकते हैं विद्या से भी, ऐसा नहीं है कि उसकी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत होती है, लेकिन वो जब आप उसको सेंस के साथ डोमिनेट कर देते हैं सर, तो फिर आपकी ज्ञान की गहराई उसके नीचे तक उतर जाती है और फिर उसमें फेल्योर नहीं होता, वो फिर फेल नहीं होता, उसमें रिस्क नहीं होता। इसलिए मेरी पहली पीएचडी हुई धरती के पेट जानने में, इसको अंग्रेजी में कहते हैं जियो हाइड्रो साइंस। तो पहली पीएचडी एक दिन में जियो हाइड्रो साइंस में हुई और दूसरी पीएचडी हुई नेचुरल इंजीनियरिंग में। तो उसने कहा इससे अकेले से काम नहीं चलेगा, कल और आना। तो कल मुझे वो नदी के ऊपर ले गया, गोपालपुरा में आपने देखा था ना वो नाला, उस नाले पे जहां से वो नदी शुरू हुई थी वहां से 17 किलोमीटर नदी के किनारे चलाया। तो जहां पर जेंटल स्लोप होते थे वहां कहता था ऐसा सीधा बांध बना दे, और जहां स्टीप स्लोप होते थे वहां कहता था ऐसे कॉन्वेक्स डिजाइन का डैम बना दे भाई, तो पानी ऊपर से आएगा तो तेरा बांध टूटेगा नहीं, पानी का दबाव यहाँ पड़ेगा। और जहां नेचुरल डिप्रेशन था वहां ऐसा अर्ध चक्राकार जोड़ बना दे। तो उसने पूरी नेचुरल इंजीनियरिंग, दिस इंजीनियरिंग विद कंप्लीटली विद कॉन्शियसनेस and concern with human need and respect of the nature, दोनों को बराबर सम्मान देने वाली इंजीनियरिंग उसने एक दिन में सिखा दी। और उस एक दिन में मुझे साइट सिलेक्शन भी सिखा दिया और उसको कैसे ये सब मेजरमेंट वगैरह सब करना है। एक दिन में मेरी दूसरी पीएचडी हुई नेचुरल इंजीनियरिंग। तो देखो यदि पानी का काम भारत में करना है तो साइंस विद सेंस and natural engineering with consciousness and concern, आप यदि पानी के काम में उपयोग करेंगे तो आपका पानी का काम भारत में मध्य प्रदेश में होगा। नहीं तो ये जो आज की इंजीनियरिंग है, आज की जो ये तकनीक है, ये जो इंजीनियरिंग है और ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका मूल सिद्धांत समझ लो। बेस्ट टेक्नोक्रेट वो होता है जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन करना सिखाता है, That is called best technocrat. तो जब तुम नेचर को केवल एक्सपेक्ट करोगे तो नेचर क्या तुम्हारा साथ देगी? नेचर क्या तुम्हारे लिए हमेशा बनी रहेगी? उसकी सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो हमें ऐसी इंजीनियरिंग और तकनीक लेनी पड़ेगी काम में जिसमें से लोगों का मन मस्तिष्क भी जुड़ता हो और प्रकृति का प्यार भी बढ़ता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सरलता से जो समझाया है कि पानी की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सूरज चोरी कर लेता है, उससे बचाना है, और उसके लिए आपने कई प्रयास भी किए। मतलब ये इसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और इससे समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि काफ़ी जटिल मुद्दा है कि ये समस्या पता है लोगों को कि कैसे पानी को बचाया जाए जिससे कि हम लोग उसका उपयोग कर सकें और किस तरह से दोहन न किया जाए। तो आप जो हमेशा कहते हैं किस तरह का इनोवेटिव मॉडल्स या अप्रोचेज आपने अपनाई, क्योंकि ये डैम बनाना या संरचनाएं बनाना, ये बना करके पानी को रोका जा सकता है, पर ये हो नहीं पा रहा था, किसी न किसी कारण से समस्या थी वहां पर। तो क्यों नहीं हो पा रहा था? क्या इनोवेटिव मॉडल्स अप्रोचेज आपने अपनाए वहां पर, और क्या प्रक्रिया रही जिससे कि आप इसको अंजाम दे पाए वहां पर? देखो मैंने सुबह भी आप लोगों से ये बात कही थी कि हमारे ऊपर जो राज करने वाले आखिरी के दिनों में थे वो भारतीय
तंत्र को ठीक से, भारतीय जो ज्ञान तंत्र है जिसको हम इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम और इंडियन विजडम कहते हैं, उसके साथ उसकी गहरी समझ कभी हुई नहीं थी। पर वो इससे डरता था क्योंकि इस तरह की समझ पर वो सरवाइव नहीं कर सकता था, चल नहीं सकता था। तो उसने हमारे पानी के बारे में सर ये कहना शुरू किया कि ये जो इंडियन है ना, ये सपेरे हैं, ये वो गंदा पानी पीते हैं तालाब का, ये पानी तो पीने के लायक नहीं है वगैरह। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि भारत में जो तालाब में पानी होता है वो सूरज की किरणों से और मिट्टी के स्पर्श से, और उस मिट्टी में जो पीने के तालाब होते हैं वो बड़ी खास जगह पे बनते हैं जहां पर लाइम कंटेंट होता है मिट्टी में, उसी जगह पर पीने के पानी के तालाब बनते हैं। तो इस विज्ञान को वो समझता नहीं था। तो उसने हमारे तालाबों के बारे में, हमारे जोहड़ों के बारे में जितना भी दुष्प्रचार कर सकते थे वो उन्होंने किया। और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि हम लोगों को अपने तालाबों से विश्वास हट गया। वो बात अलग है कि अनुपम मिश्र को 1994 में जब वो राजस्थान आए तब उन्होंने मेरे तालाबों को देखा, उन्होंने कहा राजेंद्र ये तालाब तो यार आज भी खड़े हैं, आज भी ये इतने ही उपयोगी हैं। तो फिर उन्होंने एक बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी, आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे। तो इस देश में ऐसा ज्ञान मिटा नहीं है, अभी भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस भारतीय ज्ञान तंत्र में विश्वास करते हैं और इसको समझते भी हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो हमारी एलिट क्लास थी, उस एलिट क्लास ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब भाई तालाब का पानी नहीं पिएंगे, अब तो हम धरती से निकाल के पानी पिएंगे, क्योंकि धरती के पेट में जो पानी है वो सेफ है, उसमें कुछ ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है। और उस जमाने में पॉल्यूशन था भी नहीं, उस जमाने में थोड़ा हमारा नेचुरल सोर्स ही था। तो हम लोग सरफेस के फ्लो की कंजर्वेशन की बजाय एक्सट्रैक्शन में चले गए। और फिर हमें भारत में एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हुई, इतनी बढ़ी कि हमें जहां कुएं की, तालाब की, बोरवेल की जरूरत नहीं है वहां भी हम एक बोरवेल ठोक देते हैं। फिर हमने धरती के पेट से पानी निकालना शुरू किया। दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी ने आज की तारीख में, और जो मैं बोल रहा हूं ये राजेंद्र सिंह नहीं बोल रहा, नीति आयोग कह रहा है, 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर भारत के ओवरड्राफ्ट हैं आज की तारीख में। और जब हमें आजादी मिली तब हमारी धरती पर केवल 4% जमीन थी जो ड्राउट को फेस करती थी, जिसको वाटर स्केर्सिटी एरिया कहते हैं। थोड़ा राजस्थान, थोड़ा मराठवाड़ा, आपका मध्य प्रदेश तो उस वक्त की लिस्ट में ही नहीं था ड्राउट की। सब हरा भरा आपका पूरा राज्य पानीदार समृद्ध राज्य था। कुल 4%। आज कितने हैं? 62%। 17 राज्यों में अब ड्राउट रिकॉर्ड किया जाता है। आजादी के वक्त केवल 4% थी, अभी 62% हो गई। क्यों हो गई? अब आप मुझसे सवाल पूछिए। ये इसलिए हो गई क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी पे हमारा पूरा फोकस हो गया, और हम एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी खेती को 84% पानी तो हम उसमें खेती में ही यूज कर रहे हैं, और इंडस्ट्री को, सब इंडस्ट्री भी, ड्रिंकिंग वाटर भी, खेती भी, सब हमने धरती के पेट के पानी पे चलानी शुरू कर दी। इसलिए वो जो क्राइसिस है हमारी चेंज हो गई, हमारा करेक्टर चेंज हो गया, हमारा पानी का व्यवहार चेंज हो गया, और हमारा जो पानी के साथ व्यवहार था और पानी के साथ दर्शन था उसको बदलने के कारण ये क्राइसिस हमारी बढ़ी। पॉपुलेशन को कह सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ी, हम कह सकते हैं कि हमारे पानी के उपयोग में ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग बढ़ा, ये सब है, लेकिन ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। फर्स्ट है कि हमारा पानी का दर्शन बढ़ा। भारत अकेला देश था दुनिया में जो ये मानता था आपहा ब्रह्मास्मि। इसका मतलब समझ में आया? आपा माने जल, कह रहा है मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्मांड को बनाता हूं और मैं ही ब्रह्मांड को चलाता हूं। तो भारत के लोग जब इतने ज्ञान की गहराई वाले लोग थे, ये सर मेरा नहीं है, ये आपके अथर्ववेद में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, अथर्ववेद में लिखा है अपहा ब्रह्मास्मि। वो बोल रहा है पानी की मैं ब्रह्मा हूं। तो जो लोग पानी को ब्रह्म मानते थे वो लोग पानी को फिर बोतल में भर के बेच, आज तो अच्छी बात है कि हमारी टाइप की बोतल नहीं है, अरे वाह वेरी गुड, हाँ नहीं तो मैं वही दिखाने वाला था आपको। तो अब वो बाजार में चला गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि पानी के बारे में भारतीय लोग ये मानते थे
जल जीवन है, जीविका है और जमीर है। जमीर का मतलब होता है डिग्निटी, गौरव के साथ जीना, आनंद के साथ जीना। जितने भी भारत के बड़े संत हैं उनकी डिग्निटी गंगा के किनारे, नदियों के किनारे, जो भी कुछ स्पिरिचुअल गेम करते थे वो पानी के किनारे करते थे, वो उनकी डिग्निटी थी। तो जो जल था भारत में, वो जल जीवन, जीविका और जमीर था। ये जो हमारा दर्शन बदला है नीरज, इसके कारण ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ी है। हमारा पानी के साथ दर्शन भी बदला, पानी के साथ व्यवहार भी बदला, और पानी के साथ जो हमारी जल के उपयोग की दक्षता थी, उसको कहते हैं स्किल यूज ऑफ वाटर, जल उपयोग दक्षता, और उसके जो उपयोग की जो हमारी व्यवहार में कुशलताएं थी वो सब मिट गई। इसलिए आज हम भारत के लोग बेपानी हो रहे हैं। माफ करना, जरा कड़वी बात है पर कह देता हूं। हमारे आंखों में जब तक पानी था तब तक भारत की नदियां निर्मल अविरल होकर बहती थी। तो पहले हमारी आंखों का पानी सूखा, फिर हमारी नदियां सूखी, और फिर हमारी नदियां नाले बनी। माफ करना, मैं ये नहीं कहना चाहता था पर मैं क्या करूं, हमारा सूख रहा है पानी आंखों का। और जब किसी देश के लोगों के आंखों का पानी सूखता है तो वहां की सरिताएं सूखने लगती हैं, और जब किसी देश की सरिता सूखती है तो वहां की सभ्यताएं मरने लगती हैं। माफ करना। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी इंस्पायरिंग था टू अंडरस्टैंड आपका जो पर्सपेक्टिव है ये पानी को लेकर के, जिस तरह से आज हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग हमारे ऑडियंस के लिए, साथियों के लिए थोड़ा और समझ बनाना चाहें कि ये, जैसे आपने एक एग्जाम्पल भी दिया था उस समय कि वो जो दादा थे वो आपसे कह रहे थे कि इसके लिए कुछ समाधान निकालिए, और ये हम लोगों ने अमूमन देखा है कि समुदाय का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कहीं भी। अगर आपको जल को संरक्षण करना है या पानी का दोहन से बचाना है तो समुदाय का एक बड़ा उसमें महत्वपूर्ण रोल है। तो किस तरह से आपने जो एक्सपीरियंस रहा है, आपने पूरा जीवन समर्पित किया है जल संरचना को और समुदायों के साथ काम करके उनकी संरचनाएं बनाने को, तो आपके हिसाब से किस तरह से समुदाय जो है मिलजुल करके आपस में एकजुट होकर के उसकी ओनरशिप लेकर के वो किस तरह से जल संरक्षण का काम कर सकते हैं, उसके लिए क्या काम करता है, क्या बाधाएं आती हैं उसमें? देखिए, जब समुदाय को अपनी जरूरत का एहसास होता है तो फिर उस जरूरत को पूरी करने के लिए समाधान ढूंढता है, और वो जो समाधान होता है वो समाधान जल के बारे में कोई अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि जल किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है। जल साझा है, इसलिए इसके समाधान भी साझे होते हैं। इसलिए इसको मैं हमेशा कहता हूं कि हम यदि जल की बात करना चाहते हैं तो सामुदायिक बात करनी ही पड़ेगी। पहले कैसे होता था थोड़ा समझ लो। राजा पानी का काम करने के लिए केवल जमीन देता था, प्रजा पानी का काम करने के लिए अपना पसीना लगाती थी, महाजन पानी का काम करने वालों को हलवा, खीर, पूरी, चने, गुड़, जो कुछ वो जब काम कर रहे हैं तो वो जाके देता था। तो राजा, प्रजा और महाजन, ये तीनों मिलके पानी का जो संकट है उस संकट के समाधान को विकेंद्रित सामुदायिक तौर पर ढूंढते थे। मैं यदि अपनी कहानी देखता हूँ सर, 50 साल पहले जब ये सब हुआ तो मुझे कभी ये नहीं कहना पड़ा किसी से कि यार तुम्हारा जोहर टूट रहा है, जरा उसकी मरम्मत कर लो। क्यों नहीं कहना पड़ा? क्योंकि उनके मन में ये बैठ गया कि ये जोहर राजेंद्र सिंह का नहीं है, ये जोहर तरुण भारत संघ का नहीं है। और सर आपने देखा, मैंने जानबूझकर किसी भी तालाब पर तरुण भारत संघ का बोर्ड नहीं लगाया, आज तक नहीं लगाया किसी पर। तो जब उनके मन में ये है कि ये तालाब मेरा है, हमारा है, तो फिर वो उस तालाब की जो ओनरशिप है और बिलोंगिंगनेस है वो गहराई से उनकी खोपड़ी में और उनके दिल में दोनों जगह बैठी होती है, और फिर वो उसकी मरम्मत खुद कर लेते हैं। इसलिए यदि पानी का काम करना होगा तो फिर सामुदायिक विकेंद्रित
स्तर पर समाज को एहसास कराने की जरूरत होती है कभी कभी। भाई राजेंद्र की क्या जरूरत थी वहां, और राजेंद्र के जाने के बाद ही वहां क्यों पानी का काम शुरू हुआ? कोई राजेंद्र की तो इतनी औकात नहीं है कि वो इतने सारे तालाब बना दे। तो रोल क्या था राजेंद्र का? राजेंद्र का रोल केवल इतना था कि उनको ये रियलाइज करा दे कि यार देखो ये तुम्हारी जरूरत है, और इस जरूरत को पूरी करने सरकार तो पता नहीं कब आएगी। मैंने ये नहीं कहा कभी भी कि सरकार नहीं आएगी, हाँ, मेरे किसी स्टेटमेंट में नहीं मिलेगा, पर मैं यही कहता था कि सरकार भाई जब अब तक नहीं आई तो अब आगे कैसे आएगी? तुम क्यों सरकार का इंतजार कर रहे हो, लगो ना इस काम में। तो मैंने केवल उनको रियलाइजेशन कराया, और जैसे ही रियलाइजेशन हुआ तो कम्युनिटी ने बैठ के अपनी सभा शुरू की, और सभा में बैठ के ये तय किया कि इसमें कितने पैसे लगेंगे यार, ये कितना काम है, इसमें कितना पानी आएगा, इस सारे सवाल खड़े होने शुरू हुए। तो फिर मैंने जवान लड़कों को वहीं जो अनपढ़ी थे उनको बैठा के कहा यार जरा गांव इस नाले का नक्शा बनाओ। तो उन्होंने धरती पे नक्शा बनाना शुरू किया, उसकी लंबाई थोड़ी पैरों से नाप नूप के कि इसमें इतना पानी बरसता है, इतना पानी आएगा, और इस पानी को यहां रोक लो। तो ये जो पानी की विधि है, जब वो डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी बिलोंगिंगनेस और ओनरशिप दोनों साथ साथ डेवलप होने लगती है। और जैसे ही उनकी बिलोंगिंगनेस और ओनरशिप डेवलप होने लगती है, उनको आभास होने लगता है, उसको कहते हैं इंटरलाइजेशन। अभी तक हुआ रियलाइजेशन, इस एक्शन में हो गया उनको इंटरलाइजेशन। उसको हिंदी का शब्द आभास बिल्कुल ठीक बैठता है। उनको आभास हो गया कि देखो यार इसमें इतना पानी रुकेगा, और ये पानी इतने दिन काम आएगा, और इस पानी को ऐसे ऐसे काम में ले सकते हैं, और इस पानी का साफ रखने के लिए ये करना पड़ेगा। तो जैसे ये आभास होता है, बस भाई साहब ऊर्जा आ जाती है समाज में, और फिर समाज बात करना बंद कर देता है। वो कहता है चलो फावड़ा उठा के यार वो तालाब बना लेते हैं। तो समाज को यदि इस काम में लगाना है या जोड़ना है, तो सबसे पहला काम है उसके अंदर के सोए हुए राम को जगा दो। उसके अंदर राम बैठा है ना, उस राम को जगाना पड़ता है, और जैसे ही उसके अंदर का राम जगता है वो फटाफट अपने आप काम में लग जाता है। तो इस वक्त हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी काम लगता है वो ये लगता है कि हम अपने समाज में जो बीज बचे हुए हैं उन बीजों को अंकुरित होने का मौका दे दें। वो राजेंद्र का काम था, वो उसने अपने छोटे से इलाके में अपना कर लिया। हमारे राजेंद्र जैसे हजारों राजेंद्र होंगे इस धरती में, तो ये सब लोग यदि अपनी अपनी जगह पर इस तरह से काम करने लग जाएंगे तो अभी भी परशुराम जी मैं लिख के दे सकता हूं, भारत को पानीदार बनाया जा सकता है। जो भारत आज बेपानी हो रहा है उसको यदि पानीदार बनाना है तो मैं नहीं बना सकता, और आप भी नहीं बना सकते, और आपकी सरकार भी नहीं बना सकती। ये तो साझाई काम है राज, समाज और संतों का। संत उसे कहते हैं जो केवल अपने लिए नहीं सोचता, संत उसे कहते हैं जो सबके लिए सोचता है। वो कोई भी हो सकता है, मास्टर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लाल कपड़े वाला हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? वो पैंट वाला भी हो सकता है, टाई वाला भी हो सकता है, लेकिन बस उसके मन में साझा सोचने का हो। तो राज, समाज और संत ये तीनों मिलकर ही भारत को पानीदार बना सकते हैं। और मैं आज आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं, हमने 10,800 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, जो 80 के दशक में डार्क जोन थी सरकार के रिकॉर्ड में, 96 तक आते आते व्हाइट जोन होने लगी थी। जो उस जमीन से लोग उजड़ गए थे वो लोग अपने आप अपनी जमीन पर आकर खेती करने लगे थे। ऐसे लोगों की संख्या 1-2 नहीं है, 12.5 लाख है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी भारत में लॉट ऑफ सीड ऑफ होप, अभी भी भारत में बहुत बड़ी बड़ी आशाएं हैं, आशाओं के बीज हैं। उनको थोड़ा जर्मिनेट करना है, थोड़ा अंकुरित करना है। उसको मेरी भाषा में कहना हो तो उसको एहसास कराना है कि यार तू है ना, तू बीज है ना, बस इतने से काम हो जाता है। नीरज, धन्यवाद
ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पर्सपेक्टिव रखा कि समाज का ओनरशिप कैसे आ सकता है और बगैर उसके नहीं आप इस समस्या को देख सकते हो। तो इसी को चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपसे और थोड़ा समझेंगे। आपने एक बातचीत कहा था ब्रीफली कि पॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है पानी का, अगर उसकी समस्या को हमें देखना है। इसी तरह से आपने बताया कि समुदाय के साथ काम करने की भी बहुत आवश्यकता है, कैसे उनकी एस्पिरेशन बढ़ाई जाए। तो आपने जो ये इतना बड़ा मुहिम चला करके 15,000 संरचनाएं बनाई हैं, इतने लाखों लोग उससे बेनिफिट हुए हैं, तो आपके अनुसार क्या मुख्य आपने चैलेंजेस कहेंगे, अगर क्या चैलेंजेस आपको इस जर्नी में आए और कैसे आपने उन चैलेंजेस को एड्रेस किया? क्योंकि ये अमूमन होता नहीं है। जहाँ जरूरत पानी की सभी लोगों को है, और हम देख रहे हैं अभी मध्य प्रदेश में भी इस तरह का बनता जा रहा है, खासकर चंबल और बुंदेलखंड रीजन में लोगों को किलोमीटर चलना पड़ रहा है पानी के लिए। तो जरूरत है, ऐसा नहीं है कि समुदाय में जरूरत नहीं है, चाहते हैं, पर क्या मुख्य ऐसे चैलेंज अगर समुदाय को इस तरह का जल संरक्षण का कार्य करना है, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे आपने उनको एड्रेस किया स्केल पे? हमारे पास आधा घंटा है। तो एक फिल्म हम लोग देखते हैं, आई थिंक ये भी अच्छा रहेगा थोड़ा सा। इनका जो पूरा स्टोरी है सर का, वो एक फिल्म के थ्रू कैप्चर किया गया है, तो वो हेल्प करेगा हमें इस समस्या को समझने के लिए। ये और फिल्म चंबल की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों के बीच बहने वाली नदी का नाम है चंबल। चंबल की कहानी आप सब जानते हैं और चंबल के क्षेत्र के बारे में भी जानते हैं। यस यस, शुरू कर। The 21st century is witnessing a dramatic imbalance. Global water use skyrocketed, outpacing population growth by more than double. Today, this harsh reality confronts populations across the globe. From the ancient metropolis of Rome to the bustling centers of Cape Town, Lima, Chennai, Bangalore, and many more cities, water rationing has become a way of life. Water crises have risen in prominence, consistently ranking among the top 5 global risks by impact, according to the World Economic Forum. Droughts fueled the worst humanitarian crises, displacing 20 million people in Africa and the Middle East as food shortages and conflicts erupted. India's northern plains are one of the most fertile areas in the world. Yet today, communities regularly clash over water scarcity, a desperate fight for survival in a region classified as extremely high in terms of baseline water stress, according to the WPS Water, Peace and Security Map. Our journey begins in the Chambal, a geographical and cultural tapestry woven across north-central India. This region, nestled along the Chambal and Yamuna rivers, stretches across southeastern Rajasthan, southwestern Uttar Pradesh, and northern Madhya Pradesh. Here, the human story unfolds, a narrative of the ever-present struggle for water, conflict, migration, and a struggle with profound implications for peace and stability. इसमें कोई दो राय नहीं कि दशकों से चंबल क्षेत्र पानी की कमी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से सभी समुदाय गरीबी और अशांति के दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने जब यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए एक बदलाव की कहानी है। पहले हम फरार है, ये सब डकैत रहे, तो इच्छाएं पूरी तो करनी पड़ेगी, चाहे वो कब प्रकार से करो, या बुरे धंधे से करो या कब धंधे से करो, कैसे भी करो। खेती का क्षेत्र हमारे पास 50 बीघा जमीन, हमारे पास पानी नहीं था, पैसा नहीं था, जीवन नरक में था, डर था। People have been through this pain for years. Chambal Valley. Just hearing this name brings to mind dacoity, looting,
bloody struggles, and other criminal incidents, the noise of which seems to echo in everyone's ears, where the cries of starving, innocent children echo, the tears of helpless women express their pain, and the anger of wandering youth's frustration in every corner. The reason for this horrific scene was not the crime happening here, but the water disappearing from this area. हम मानते हैं कि पानी इस धरती पर शांति ला सकता है, यह संघर्ष और पीड़ा से मुक्त भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यह पूरी यात्रा हमारे अकेले से नहीं होगी। इसके लिए हमें पूरे समुदाय के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। ये चंबल का राजस्थान धौलपुर जिले का बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र है। यहाँ पास का एक गांव है नाहरपुर, वो पूरा गांव माइनिंग के कारण त्रस्त हो गया था, तबाह हो गया। जब कुछ उनके पास रोजी रोटी नहीं मिल रही, खेत में पानी नहीं रहा, तो बस बंदूक लेके घूमते, मरते भूखों मरते, क्या ना करते। जैसे कि बागी बना या डकैत बना या खानों में काम करने के लिए गया। अगर वहाँ के लोग खानों में काम करते हैं तो सिलोकोसिस बीमारी हो जाती है। सिलोकोसिस बीमारी जो है 25 से 30 साल की उम्र में या तो आदमी मर जाता है या पूरी जिंदगी वो दवाइयों पर निर्भर रहता है। The Chambal Valley, where flow the Sherni and Parvati rivulets. These rivulets irrigate the lives of around 108 villages of districts of Dholpur, Karauli in Rajasthan. But many years ago, when the water of these rivers dried up, life seemed to come to a halt. Fields turned barren, livestock started to perish, people were displaced, jobs disappeared, and hunger engulfed everyone. Fearing the loss of their loved ones, the youth took up arms. The entire Chambal trembled with looting, plundering, and dacoity. आज हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो धौलपुर करौली है, और इस एरिया के कुछ गांव में जो सबसे बड़ा कष्ट होता है वो महिलाओं की जिंदगी में आता है। पत्नी बच्चों का पालन करे या पानी लाए या उस अपने पति की दवाइयों की व्यवस्था करे। जवानी में 25-30 साल में ही विधवा हो जाती है, या तो उनको दूसरी शादी करनी पड़ती है या फिर पूरी जिंदगी अकेले रहना पड़ता है। जब खड़कती थी बंदूकें, Waterman Rajendra Singh, founder of Tarun Bharat Sangh, has been working on water for decades. He and his team set out to restore water in the Chambal Valley. Tarun Bharat Sangh started connecting people in Karauli and Dholpur with water. Tarun Bharat Sangh started the construction of traditional water conservation structures in various places to collect rainwater. The youth, who were compelled to tread the path of crime, were shown a new path of fearlessness and happiness. हम तो पिछले 40 वर्षों से यही कर रहे हैं कि जल से दुनिया में शांति कायम हो सकती है, जल से ही दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाया जा सकता है, जल के काम से ही दुनिया को विस्थापन मुक्त और आपदा मुक्त बना सकते हैं। ये नदी सूख गई थी, सारे युवा अपना हथियार लेके बंदूक लेके सब घूमते रहते थे। एक भी आदमी का मन ना पानी के काम में लगता था ना प्रकृति के प्यार में लगता था। वो जो हजारों युवा थे उन्होंने ही अब इस नदी को पुनर्जीवित करने का काम किया। तो ये काम इसलिए हो सका क्योंकि उनके अंदर प्यार बढ़ा इस पानी के काम से, और उनको विश्वास हुआ कि ये जो पानी का काम है ये उनकी जिंदगी को बदल सकता है। हमारा मानना है कि बड़े पैमाने की परियोजनाएं इस समस्या का समाधान नहीं। हमें समुदायों के ज्ञान के साथ काम करने, वर्षा जल संचयन के लिए प्राचीन जोहड़ों, पोखर, पगारे और जो उनका जो पुरातन जल विज्ञान है उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। यह सिर्फ ढांचे बनाने का काम नहीं है, यह जल संरक्षण की संस्कृति, स्वामित्व की भावना को पुनर्जीवित करना और समुदायों के उनके जल संसाधनों का प्रबंधन का अधिकार देना, उसका काम है।
After the rains filled these ponds, water flowed into the wells, bore wells, and rivers, and life rejuvenated once again. Barren lands started disappearing. Greenery began to spread. Farming started flourishing. Animal husbandry improved, and opportunities for employment started to emerge. तरुण भारत संघ की कहानी समुदाय, सहयोग और पारंपरिक ज्ञान की शक्ति का प्रमाण है। यह आशा की एक किरण है जो कि पुनर्स्थापित करने के लिए एक मॉडल भी है। जल सुरक्षा केवल एक इंजीनियरिंग समाधान नहीं है, यह सामूहिक योगदान और मानसिकता में बदलाव की पूरी एक प्रक्रिया है। साथ में मिलकर हम न केवल राजस्थान बल्कि पूरे विश्व के लिए जल सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। When water returned to Chambal, even those who were lost in the darkness of crime found their way back. They abandoned their guns, picked up plows again, and started cultivating the land without fear, with dignity, to build a better future for themselves and their families. पहले जहाँ डर और भय का माहौल था, आज ये लोग प्रेम और सौहार्द भाईचारे के साथ रह रहे हैं और ये लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। ये घर पर ही रहते हैं शांति से। पशुपालन में भी इन लोगों ने बहुत बड़ी वृद्धि की है। पहले एक फसल लेना भी बहुत दुर्लभ था और वो वर्षा पर आधारित था। आज ये लोग 3 फसल लेते हैं, रबी, खरीफ और जायद, तीनों फसलों में लेकर के ये लोग अपने जीवन को चलाने का काम कर रहे हैं। इनको काम अच्छा लगेगा तो अपना गलत काम छोड़ के हम इनके काम से जुड़ गए। दीपावली में पानी नहीं दे तो जब मतलब मई तक, जून तक पानी रहने लग गए। हमारे अंदर से तो कुछ डर था, वो डर भी निकल गया, हमें सुधार आ गया, हमारे बच्चों में भी सुधार आ गया। तो हम पैसा भी लगा रहे हैं, उस जमीन को भी बना रहे हैं और जमीन में तो पैदावार कर रहे हैं। जीवन अब बहुत बढ़िया सुरक्षित जीवन है। सब पानी, पानी से हमारी भूख मिट गई। जमीन तो उनके पास पहले से बहुत थी लेकिन पानी नहीं था, इसलिए पानी आया तो जमीन की वैल्यू बढ़ी और जमीन की वैल्यू बढ़ी तो युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हुआ। तब युवाओं ने बंदूक छोड़ के पानी का काम और खेती का काम शुरू किया। पानी सिर्फ जीविका का स्रोत नहीं है, यह शांति का उत्प्रेरक भी। चंबल क्षेत्र में जब कहाँ पानी नहीं था तो वह पूरा इलाका संघर्ष और हताशा का प्रतीक था, लेकिन जब हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से कि जब पानी वापस आता है तो उसके साथ सुख आता है, समृद्धि आती है और शांति भी आती है। There are several families living in villages who are now living harmoniously due to the efforts made by Tarun Bharat Sangh. The same hands that once picked up weapons to feed their children and families are now engaged in agriculture to feed them. डराने गाँव करते लूट मार, खाने बंद कर देते, गाड़ी रुकवा देते, तो क्या था तो बेस बनते काम तो बनते ये पूरा परिवार नहीं काका वो सब तब सुखा अकेले डांग में डोलो करते तो वो गए थे बनी घर वाले बच्चा बच्ची पूरा परिवार सब और जब बस हो गए तब का शांति ऐसा हो गया। पानी की सुविधा है गई, शांत से जानते बिनते सुबह मिलेगा हमने कुछ सब चीज हर एक चीज को सड़क आते हर एक चीज तो का सुविधा मिली है तो वहाँ रब्बा सरसों गेहूँ और चना फना से कर लेते हैं और भैंस मवेशी खाते हैं। चना वहाँ हरियाई फरियाई तो बात अपने बच्चे ने बाहर पढ़ाई लिखा भैया तब आ रहा हूँ तो शांति देव ने घर रहे सवेरे समझ आता कोई दिक्कत नहीं आता। Not only the youth of the village, but also the women have become self-reliant with the arrival of water. The women of Maharajpura village understand the importance of water, because when there was no water, they only had problems to deal with. पानी नहीं था तो पानी की वजह से सारी प्रॉब्लम होती, बच्चे भी पढ़ लिख नहीं पाते और हम भी खुद भी सही अच्छा खाना नहीं खा पाते, अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पाते। पशु नहीं था तो पशु क्यों इसलिए नहीं रखते कि ना अपने लिए खाने के लिए नहीं होता, बच्चों के लिए भी नहीं होता तो कहाँ से रखेंगे। अब तो 4-4-6 हम भैंस गैया बकरी रखने लगे तो वे सबसे हम दही दूध और काफी खाते हैं, फिर बचता है तो उसे हम बेच देते हैं तो पैसा भी आ जाता है। बच्चे पहले अनपढ़ भी डोलते, क्यों पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था और सुविधा नहीं थी कोई तो कहाँ से जाएंगे पढ़ाने, कहाँ भेजेंगे। अब तो हम जयपुर करौली कहीं भी जहाँ मन करे जहाँ भी भेज सकते हैं बच्चे। People could not believe that rainwater could be also collected and stored in such a hilly area. कुआं नहीं, बिजली नहीं, हमारे को पानी का कोई साधन ही नहीं,
हम तो पहाड़ी इलाके पहाड़ में बस रहे हैं समझो। पहले कभी धानी करते तो धानी सूख जाती था, क्यों बरसात पोखर इतनी कभी पानी रुको नहीं होते, तो पानी रुके तो बहुत सुविधा है साहब। पानी बचा फुहारे वो लगा के खेती में पानी देते साहब, पानी हती नहीं है करते हैं साहब। तो पोखर रुकवा ले तो पानी बरसात हो तो पानी रुक गो तो मैंने आगे घूमने दे गई साहब, तो पानी की खेती है रही है। Bhuri Singh is also counted among those youths who were wandering away from their families in the ravines of Chambal. Water brought him back too. Now he practices farming and fisheries. ये संस्था से हमारे लिए ये तालाब बन गया, तो यहाँ से हम इनों से जुड़ गए। बढ़िया काम धंधा हो रहा है पानी के बारे में। यहाँ से हमारे कम से कम 40-50 बीघा जमीन की पैदावार, अच्छी फसल होती है। बहुत अच्छा बदलाव आया है हमें, हमारे बच्चों, ये मच्छियों को बीज डाला है हमने, तो ये कम से कम मतलब थोड़े पैसे का आया है बीज। अब ये बड़ा हो जाएगा 1 साल बाद, तो 1 साल बाद में फिर इसकी बहुत बड़ी वो हो जाएगी, तो 1.5-2 लाख रुपये हमारे लिए बचत हो जाएगी। तो बात है अपने बच्चों का मतलब आगे का भविष्य, पढ़ाई है, लिखाई है, अरे खर्चा पानी है, तो इससे कुछ मिल जाए। There are thousands of stories of men like Bhuri Singh who live fearlessly and are now working for water conservation on their land and creating new employment opportunities in their villages. बिल्कुल कुआ बिल्कुल सूखे रहते, तो फिर इससे क्या है कि पानी कुओं में बोर में सब ऊपर आ गया था। उससे अच्छी गांव में उन्नति हुई है, अच्छी पैदावार होने लगी है। उससे क्या है आनंद लग गया और बिजनेस बढ़ गई। इससे दूध का भी काम हो रहा है। मैंने अब की बार अब तक होरी तक 1.5 लाख रुपए का दूध बेचा है। वहाँ मजदूरी करते थे, वहाँ पे क्या है कि 10-12 हज़ार का महीना मिलता था, वो पैसे से हमारा घर का गुजारा करते थे। अभी जब पानी हो गया उसके बाद में बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से यहीं पे बढ़िया पैदावार होती है, बढ़िया सब कुछ होता है। साल में 2-3 लाख रुपए का हो जाता है पैदावारी। गाँवों में जा रहे हैं और हम एकत्रित करके गांव के लोगों को उनको बता रहे हैं कि हमें पहले गाली सुननी पड़ती थी, प्लान करते थे उस टाइम गाली सुनने पड़ती थी, वो हमें अब नहीं मिले। हमें हुए, हमारा सुधार हुआ है, ऐसे ही आपका सुधार हो। It is not possible to create a better society if the youth is on the wrong path. It is the water which made them confident about their secured and dignified future. जब लोगों के जीवन में पीने, सिंचाई और आजीविका के लिए स्वच्छ पानी आता है, तब उन्हें हताशा के कारण हिंसा या आपराधिक गतिविधियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। इसके बजाय वे अपने और अपने प्रियजनों के बेहतर भविष्य के लिए अपना पूरा ध्यान और अपनी मेहनत केंद्रित करते हैं। जिस तरह वहाँ की शेरनी नदी और पार्वती नदी में बदलाव आया है, वो बदलाव कि आज वो कल करके बहने लगी जो सूखी पड़ी रहती थी। Water conservation has made the Chambal self-reliant. There are water sources in several places now. Arid land has become fertile. The ecosystem has become better. Society is becoming peaceful. Education, health, economy, and employment have improved for the better. This prospering society is being molded in harmony with nature. ये काम अब कभी रुकेगा नहीं, सनातन होकर बढ़ता रहेगा, आगे चलता है। यही मेरे जीवन का संकल्प है और यही तरुण भारत संघ का संकल्प, और यही अब नए बने सुखाड़ बाढ़ विश्व जन आयोग का संकल्प। And the objective of this vow is to bring peace in the world and happiness for every single living being in nature. जल उपलब्धता से पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में नहीं है, यह शांति और समृद्धि की ये जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उनको बनाता है। संघर्ष और असुरक्षा के मूल कारणों को संबोधित करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाज का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आप ना भगवान के ज्यादा लाडले बेटे और बेटियां हैं।
भगवान का आपके ऊपर ज्यादा प्यार है। हम राजस्थानियों से भगवान नाराज रहता है, इसलिए हमारे पास ना ज्यादा बारिश होती है, और जो हमारे पत्थर हैं वो भी लाल है। आपने देखे, मिट्टी भी अच्छी नहीं है, आपके पास तो काली मिट्टी है। खूब अच्छी बारिश भी होती है, जंगल भी होता है। इसलिए हमें जहाँ नेचर ने इतना अच्छा जंगल, पानी, मिट्टी दी है, वहाँ की जो समृद्धि है, उस समृद्धि में एक अलग तरह का आनंद होता है। आजकल हम उस आनंद को भूल गए। आजकल हम कुछ और चीजों में आनंद लेने लगे हैं। आनंद का स्वरूप बदलता रहता है, वो मैं जानता हूं कि आनंद का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन यदि हम सचमुच में अपने मूल आनंद के साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर हम किसी के गुलाम नहीं हो सकते। हमारी गुलामी का रास्ता, हमारा कोई टेम्परेरी आनंद जो होता है ना, वो हमें गुलाम बनाने के रास्ते पे लेके जाता है। इसलिए आज ये जो हमारा स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिन पर एक संकल्प हमें जरूर करना चाहिए कि हमें अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, किसी से नहीं डरना और ना किसी को डराना। हमारे जब डाकुओं की कहानी इसमें ज्यादा नहीं दिखाई, वो दूसरी दूसरी फिल्मों में है। वो जो वो अमेरिका का एक जैक नाम का एक वो अंग्रेजी की फिल्म है, बड़ी फिल्म है, उसमें बहुत सारे डाकुओं की कहानी दिखाई है। पर जिस डाकू ने सब डाकुओं की बंदूकों को छुड़वाने का काम किया, वो डाकू ने नहीं किया, वो एक औरत ने किया। हमारे अलवर जिले की एक लड़की थी, उसका नाम था भगवती। उसको निर्भय नाम का डाकू कुल 5,000 रुपए में खरीद के लाया था। ये निर्भय जो है ये धौलपुर का था, और ये लड़की हमारे इलाके की थी, अलवर की। अलवर में बहुत गरीबी और तंगी बदहाली थी, और जो ये डाकू थे इनकी कोई शादी करता नहीं है, कोई अपनी बेटी इनको नहीं देना चाहता। तो ये कभी कभी तो बेटियों को जबरदस्ती छीन के ले आते थे, कभी कभी पैसा दे के ले आते थे। ये निर्भय थोड़ा अच्छा था, तो इसलिए वो पैसा दे के लेके आया। हमारे यहाँ सारे गुजर जो हैं अपनी बेटियों को पैसा लेके ही देते हैं, वो बिना पैसे के। जैसे आजकल दहेज में बेटों को ब्याह करते हैं तो पैसा लेके करते हैं ना, वैसे पुराने जमाने में हमारे यहाँ ऐसे ही होता था। तो क्या हुआ, वे भगवती नाम की एक लड़की थी। भगवती को जब ये ले आया तो ये भूल गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाकू हो गया, और इसके पास 150 बीघे जमीन थी, खूब, लेकिन जमीन में कुछ होता नहीं था, और इसके माँ बाप को भी बचा नहीं था, सब केवल वो भगवती थी। तो भगवती को जमींदारनी बना दिया था उस जमीन का। अब जमींदारनी तो 150 बीघे की जमीन थी, मालिक थी, पर क्या करे, उसमें एक दाना नहीं होता था। तो 6-7 साल के बाद गुजारा करके वापस अपनी माँ के गई अलवर में। वहां भावता गांव आप गए थे, भावता याद है उमराव जी? भावता गांव गए थे अब। हाँ विवेक, विवेक भावता गांव याद है तुम्हें? गए वो शायद बाहर निकल गए। तो क्या हुआ, भावता की बेटी थी ये भगवती। तो ये वापस भावता गई। तो जब ये वापस गई तो वहां बहुत अच्छी खेती होती थी भावता में। आपका अभी भी फोटो है वो पहाड़ पे से लिया हुआ भावता का, सारी जमीन पे खेती होती थी। तो इसने पूछा कि माँ यू अपनी जमीन पे खेती कहीं होवे लगी? बोला एक डॉक्टर पागल आया है, वो जो है अब उसने आदमियों का इलाज करना बंद कर दिया, अब वो आजकल धरती का इलाज करे है। तो जब से उसने इलाज करा तो पानी आ गया, तो अब खेती होने लगी। तो बोली ऐसा डॉक्टर तो भरे भेज दे तू बटे। बोला वो किसी की सुनता नहीं है, मैं तुझे एक तरीका बताती हूँ, तू 5-6 बुढ़े आदमी अपने इलाके के भेज दे, और 2-4 दिन उसके वहां रहेंगे ना उसके साथ, फिर वो बुढ़े कहेंगे कि चल हमारे साथ, तो वो चला जाएगा। वो ऐसे ही पागल आदमी है, वो कहीं भी चला जाता है। तो उसने, उसकी माँ ने उसको तरीका सिखा दिया। उसने वही किया, वहां से 5-6 बुढ़े भेजे चंबल से, वो मेरे आश्रम में रहे। मैं भी किसी से पूछता नहीं तुम कहाँ से आए, क्यों आए, आए रहे, मैं भी उनके साथ गपशप करता रहा। 5-6 दिन बाद उन्होंने कहा और राजेंद्र तू माँ के साथ चलना, माँ का इलाका भी देख ले, तूने देखा नहीं है, माँ का इलाका बहुत अच्छा है, चल तू माँ के साथ। पानी वानी की बात नहीं की, इलाका दिखाने की बात की। मैं चला गया उनके साथ, और उन्होंने सबसे पहले भगवती की जमीन दिखाई। भगवती की 150 बीघे जमीन थी, दोनों बीच में वैली थी, पर उसमें मिट्टी नहीं थी, लाल पत्थर थे। तो उसने कहा, भगवती आई, भगवती ने कहा कि मैं भावता की हूँ, भावता से मेरा ये लेके आया था। मैंने कहा वो कहाँ है? तो उसने नीची गर्दन कर ली, तो मैं समझ गया कि कुछ चक्कर है, अब नहीं पूछते इससे ज्यादा आगे। तो बोली
मुझे ये बांध बनाना है, जैसे तेने वो भावता में बनाया ना सांकड़ा बांध, अहिया का बांध बनाना है। मैंने कहा तू अकेली कैसे बना लेगी, इसमें तो पैसा भी चाहिएगा, काम भी चाहिएगा, मिट्टी का भी काम है। तो बोली मुझे ये करना है, बहुत हिम्मत से। अब कोई औरत ऐसे कहे कि मुझे ये करना है तो कोई होगा नहीं काम, बताओ होगा कि नहीं होगा। उसने कहा मुझे करना है ये। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हें करना है तो फिर बताओ कैसे करोगी। उन्होंने कहा मैं लगूंगी ना ऐसे काम करने। तो वो उस काम में लग गई। और जब मुझे ये पता लगा कि ये तो करेगी ही, तो फिर मैंने पैसा जुटा के ट्रैक्टर वालों को, जेसीबी वालों को सब भेज दिया उनके इलाके में कि भाई जाओ तो उसका बांध बनाना है भगवती का। तो इन्होंने 6-7 महीने में सब बन गया, बांध पूरा हो गया। बांध पूरा होने के बाद जो उसने होशियारी करी वो सीख लो। उसने क्या किया, वो मिट्टी थी नहीं उनकी जमीन पे, तो सरसों का बीज बखेर दिया। वो जो ऊपर से पत्ते मिट्टी आए थे उस मिट्टी में सरसों का बीज बखेर दिया। सरसों तुम जानती हो उस बिना पानी के भी हो जाती है, तो सरसों होगी। तो सरसों काट के सबसे पहले अपने पति के लिए एक 5 रंग का साफा, उसको राजस्थान में पचरंगा साफा बोलते हैं, और एक सफेद कुर्ता और एक धोती खरीद के ले आई। और उसने, वो तो लीडर था बड़ा, उसका पति तो 80 बंदूक वाले उसके पचनाली बंदूक कहते हैं जो एक साथ 5 गोली चलाती है, ऐसी 80 बंदूकें थी उसके गैंग में। तो उसने उसी गांव का एक और आदमी था, उसने तो अपने पति के पास संदेश भेजा कि जाके उसे बोल देना मेरी शक्ल देखना चाहे है तो मकर संक्रांति के दिन 4 बजे से पहले आ जा, नहीं तो 4 बजे के बाद मेरी शक्ल ना देखे। उसे मेरी शक्ल को नहीं दिखेगी, 4 बजे तक मैं जिंदा रहूंगी, फिर मैं जानू मुझे क्या करना। अब ये डाकू जरूर था लेकिन पत्थर का दिल नहीं था। दिल तो इसका जैसे ही समाचार मिला उसने तो पूरी तैयारी कर ली कि मुझे वहां जाना है, और पूरे गैंग को लेके वहां गांव में पहुंच गया। अब मुझे भी ये संदेश था कि मैं भी उस वक्त वहां पहुंच जाऊं। तो ये तो पूरे चारों तरफ सब बंदूकधारी खड़े थे, पर मेरे जैसे फक्कड़ आदमी का कोई क्या लूटेगा, मुझे काहे का डर था। मैं भी उनके बीच में घुस गया और घुस के उसके घर में गया। भगवती ने मुझे देख लिया और मुझे ऐसे इशारा किया तो मैं खाट पे बैठ गया। और वो तो 2-3 मिनट के अंदर अपनी थाली में एक तो पति के लिए पचरंगा साफा और एक सफेद कुर्ता और एक धोती लेके आई और मेरे हाथ में दे दिया। और उसने ऐसे इशारा करा, मैं उसके पति को बिल्कुल नहीं जानता था। जब उसने यूं उंगली से इशारा किया तो मैंने कहा कोई होगा ये कपड़े उसको देना चाहती है, मैं दे देता हूँ। मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने वो थाल जो है उसके पति के सामने कर दिया और वो जो साफा था पचरंगा, मुझे बांधना आता ही है, मैंने उसके बांधना शुरू किया। तो साफा तो उसने शांति से बंधवा लिया, कुछ आंसू कुछ नहीं आए। और फिर उसने वो जो कपड़े थे बाएं, उसके ये जो राइफल थी वो यहाँ टंगी हुई थी, उसने उसको तो दाएं हाथ में लिया और बाएं हाथ में उठा लिया और वो हिला के बोला, सुनो रे, अब तो मुझे इसके साथ रहना है, अब इसके साथ नहीं रहना, तुम जाओ, सब चले जाओ। इसमें 5 लाख रुपए का इनाम था। तो इसके गैंग के लोगों ने कहा तुझे पता है तुझे पुलिस रहने देगी ना, तेरे ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम है। हाँ मुझे सब पता है, अब तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, अब मुझे इन्हीं बंदूक नहीं चलानी, अब तो मुझे इसी के साथ रहना है। जब उसने इतना पक्का संकल्प किया तो फिर लोगों ने कहा कि तुझे कोई रहने देगा, पुलिस यहाँ रहने देगी क्या तुझे जिंदा। तो उसने मेरी तरफ इशारा किया कि देख ये देख लेगा, तुम जाओ, हो जाएगा सब, मुझे सब पता है। उन दिनों में हमारे यहाँ एक बहुत ही ऑनेस्ट जीडीपी डायरेक्टर पुलिस था, उसका नाम था शांतनु कुमार। हाँ शांतनु कुमार। मैं जाके उसको कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तुम्हारी पुलिस को तो उसको कभी पकड़ नहीं पाई, अब उसने वो बंदूक छोड़ दी है, अब क्या करोगे। उन्होंने कहा यार ये पॉलिटिशियंस जो है ना ये सिर्फ दर्द पैदा करेंगे, नहीं तो मैं इस मामले को 9 महीने के अंदर अंदर सब सुलझा दूंगा। 9 महीने तो उसको जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि इतनी जल्दी ये सुलझता नहीं है, इसमें बहुत सारे दावपेच होते हैं, पर मैं 9 महीने में उसको सारे मुकदमों से फ्री करवा दूंगा क्योंकि सरेंडर दिखा के। बट ये पुलिस और ये जो मीडिया है ये इसमें जरा चक्कर करेगा। मैंने कहा अभी कुछ नहीं होगा, तुम तो इसको लगाओ। आरसी मित्तल वो एसपी था, उसको बुला के उसने वो काम दिया। दोस्तों मैं आपको इतना बताऊं, कभी कभी पुलिस भी बड़ी ईमानदारी से काम करती है, सच्ची।
मैं सच्ची कह रहा हूं, मैं हंसाने के लिए नहीं, कभी कभी करती है। हमेशा नहीं करती, कभी कभी करती है। 9 महीने के अंदर सारे मुकदमे खत्म हो गए और उस आदमी को फ्री कर दिया। और उस आदमी ने आके जो गीत गाने शुरू करे, वो कभी नहीं गाता था, और वो तो वहां आके चिल्ला, चौराहे पे गांव गांव में वो सबको जानता था, सारे डाकुओं को उस इलाके के एक एक का उसको पता था। क्या गाता था वो, जरा सुनो। मैं डरता था, डराता था, मरता नहीं था, मारता था। अब मैं समझदार हूं, इज्जतदार हूं, पानीदार हूं, मालदार हूं। तुम्हें भी बनना है तो मेरी तरह बंदूकें छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ। बस इतना गाता था, इससे ज्यादा उसको गाना वाना नहीं आता था, बस यही गाता था। और भाई साहब, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर कह रहा हूं, इस 22 मार्च को, ये जो 22 मार्च गया ना अभी, 22 मार्च 2024, 3000 डाकुओं की बंदूकें छुड़वा के खेती के काम में लगा दिया। इस काम में थोड़ा समय लगता है, ये जल्दी नहीं होता, ये कोई एक दो साल का काम नहीं होता, समय जरूर लगा। लेकिन मुझे बताते हुए कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को, क्योंकि ये आपके बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में जो डकैतियां होती थी, उनकी नर्सरी थी हमारा धौलपुर और करौली। आप जानते हैं, पूरी नर्सरी सबका लाल वहीं से वो बन के आते थे। इसलिए हमने अब नर्सरी को ठीक कर दिया है, अब वहां नर्सरी में खेती होती है और पानी होता है। थैंक यू वेरी मच। कुछ नीरज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी था, और आपका फिल्म देख करके भी बड़ा आई गेस सभी को इंस्पिरेशन भी मिला होगा, ज्ञान भी मिला होगा किस तरह से हम लोग इस समस्या को देख सकते हैं। अब समय की ध्यान में रखते हुए एक आखिरी सवाल बस, उसके बाद हम इस सत्र को क्लोज करेंगे। क्योंकि आपने जैसे कहा, मध्य प्रदेश में शुरुआत से पानी को लेकर के समस्या नहीं थी, पर अभी काफ़ी बढ़ने लगी है। और एक हम लोग जो आजकल देख रहे हैं कि क्लाइमेट को जो चेंज की वजह से जो वल्नरेबिलिटी और बढ़ती जा रही है, और इस मामले पे भी बड़ी अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश एक अग्रणी प्रदेश है जिन्होंने जिलावार क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करवाया है, सभी जिलों का, 52 जिलों का। और उसमें से 12 ऐसे जिले हैं जो मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी में हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो अब इस तरह की स्थिति में क्लाइमेट चेंज जो है, वैसे ही संकट है पानी का, और क्लाइमेट चेंज की वजह से और बढ़ता जा रहा है और वो विकट होता जा रहा है। तो आपके लिए, अगर हम मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की नीति के लिए किस तरह की नीति बनाने की आवश्यकता है, किस तरह से पॉलिसी को देखने की जरूरत है, जिससे कि हम ये इस प्रदेश में जो समस्या बढ़ रही है, जैसे कि आपने बताया, जो कोलैबोरेशन का जरूरत है, कम्युनिटी समुदाय का एस्पिरेशन का जरूरत है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज का जरूरत है, पर राज्य के लिए किस तरह की नीति बनाने का जरूरत है? राज्य किस तरह से इनेबल कर सकता है कि ये संकट जो है ये यहीं थम जाए और हम लोग पानी को एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाए पूरे प्रदेश के लिए? देखो, मैं नीति बताने से पहले अपनी सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ। 1980 के दशक में जब हमने पानी का काम शुरू किया, तब हमारे यहाँ के बूढ़े लोग एक गीत गाते थे, जरा ध्यान से सुन लो और इस गीत को लिख सको, रिकॉर्ड कर सको, तो तुम्हें क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाना आ जाएगा। इस देश में और दुनिया में कोई क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा नहीं सकता जब तक उसने 40 साल क्लाइमेट पे काम ना किया हो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो अपना 45 साल का मैंने किस तरह से क्लाइमेट को चेंज होते देखा और उसको किस तरह से अडेप्टेशन और मिटिगेशन के दौर से उस पूरी तस्वीर को बदला। तो पहला गीत सुन लीजिए। जब मैं वहां गया था तब हमारे सारे बूढ़े लोग एक गीत गाते थे, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं हैं वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां हम नहीं जानते।
जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी मुझसे रूठकर दिल्ली चले गए। अब मेरे कुएं में पानी नहीं, मेरे खेत में हरियाली नहीं, तो मेरे इस बुढ़ापे में खुशहाली कहाँ। ये सब दुख के गीत थे, और ये सारे दुख केवल क्लाइमेट चेंज के कारण थे, क्योंकि माइनिंग ने जो डिजास्टर किया था उस इलाके में, उस डिजास्टर ने हीट वेव्स पैदा कर दी थी, और हीट वेव्स के कारण बादल ऊपर उठ जाते थे, और पीछे से दबाव, हवा के दबाव में बिना बरसे बादल आगे निकल जाते थे। ये थी कहानी 1980 के दशक की। 96 में आते आते, 16-17 साल के बाद आते आते कुछ गांवों में गीत बदल गए थे। उसको जरा ध्यान से सुनो, और इन दोनों गीतों का कॉन्ट्रास्ट यदि आपने ठीक से समझ लिया तो आपको क्लाइमेटोलॉजी का ठीक से ज्ञान भी हो जाएगा, और क्लाइमेट चेंज का अडेप्टेशन और मिटिगेशन का व्यवहार भी समझ में आ जाएगा। ये दूसरा गीत समझ लो। अब बादल आते हैं मेरे गांव में, रूठते नहीं हैं वो, बरसते हैं मेरे खेतों पर, पानी आ गया है मेरे कुएं में। जिस दिन से पानी आया मेरे कुएं में, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू, और अब एक पोती भी हो गई है उनको, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू और पोती लौट आए हैं घर। अब करते हैं वो खेती, कुएं में है पानी, खेत में है हरियाली। अब मुझे मालूम है कि मेरा बुढ़ापा मेरे बेटे और बहू के साथ मेरे खेतों की हरियाली में खुशहाली से बीतेगा। ये मैं केवल अपनी लोक भाषा में जैसे लोग गाते हैं, इसमें कुछ नमक मिर्च और गुड़ घी नहीं मिलाया मैंने, जैसे वो गाते हैं वैसा मैंने आपको सुनाया। कैसे बादल रूठते थे? बादल रूठते हैं जब जब गर्मी होती है, हीट वेव्स होती हैं, और बादल रूठते नहीं है तब जब आपके इलाके की जो हरियाली है वो कार्बन का सिक्विस्टेशन करने लगे एटमॉस्फेयर में से, और उस कार्बन को डिपॉजिट करने लगे धरती में, मिट्टी में, पेड़ों में। और ये जो पत्तियां हैं आपके जंगलों की, पेड़ों की, उसमें से ट्रांस एवोपरेशन होने लगे। वो जो ट्रांस एवोपरेशन है वो माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन करता है। वो जो माइक्रो क्लाउड्स हैं वो अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से आने वाले मैक्रो क्लाउड के साथ मीट करके बरसते हैं। ये जो एडेप्टेशन और मिटिगेशन का मामला है दोस्तों, नीरज मैं तुम्हें बहुत सफाई से कहता हूं, अब मिटिगेशन संभव नहीं है क्लाइमेट का। जो लोग मिटिगेशन की बात करते हैं वो बेईमानी। अब केवल क्लाइमेट का एडेप्टेशन पॉसिबल है। एडेप्टेशन से आप जो करना चाहते हैं वो अभी भी कर सकते हैं, और अब आपके हाथ में ज्यादा समय नहीं है एडेप्टेशन के लिए भी। जो कैरिंग कैपेसिटी है उस सब को देखते हुए 10-15 साल आपके पास और हाथ में है। आप सक्सेसफुली एडेप्टेशन कर सकते हैं जब तक आपके अंडरग्राउंड थोड़े बहुत एक्यूफर्स को रिचार्ज करके धरती के ऊपर हरियाली बढ़ा के थोड़ी ये प्रोसेस दोबारा से अलाइव कर सकते हैं। इसलिए क्लाइमेट चेंज, एडेप्टेशन और मिटिगेशन को यदि समझना है तो ये जो बारिश का चक्र है, जो पहले हमारा किसान जानता था कि कब बारिश होगी और उस बारिश को समझ के सीड सोइंग करता था, तब डिस्चार्ज करने की उसको ज्यादा जरूरत नहीं होती थी। अभी चूंकि क्रॉप पैटर्न हमारे रेन पैटर्न के साथ इस्टेब्लिश नहीं हो रहे हैं, जब हमारे क्रॉप पैटर्न रेन पैटर्न के साथ इस्टेब्लिश नहीं होते तो आपको डिस्चार्ज ज्यादा करना पड़ता है, और डिस्चार्ज करके फिर आपको सीड सोइंग भी करनी पड़ती है और इरिगेशन भी करना पड़ता है हार्वेस्टिंग तक। ये जो प्रोसेस है इसको हमें डिस्चार्ज और रिचार्ज, इसका बैलेंस बनाने के लिए ये जो क्लाइमेट चेंज है, इस क्लाइमेट चेंज के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। और ये पैटर्न समझ के लिंकिंग क्रॉप पैटर्न विद रेन पैटर्न,
यदि हम कर दें तो भारत में 40% पानी में जितना आज 84% पानी को यूज करके प्रोडक्शन होता है उतना 40% पानी में आप कर सकते हैं। इसलिए अभी भी मैं खासकर मध्य प्रदेश में खड़ा हूं, मध्य प्रदेश के साथियों को ये कहना चाहता हूं कि अभी भी आप फॉर्चुनेट हैं, हिंदी में बोलते हैं भाग्यशाली हो, क्योंकि अभी भगवान का लाड तुमसे कम नहीं हुआ है। भगवान का लाड तुम्हारे ऊपर खूब है, भगवान तुम्हें बहुत लाड करता है, हमें नहीं करता, वो हमसे बहुत नाराज रहता है। इसलिए तुम्हारा काम अभी 10-15 साल और हो सकता है। हम तो बिल्कुल उजड़ ही गए थे, हमसे तो नाराज था ना, वो तो उजड़ गए थे हम। आप तो अभी उजड़े नहीं हैं, लेकिन आपकी ये जो डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस है, ये डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस डिस्ट्रक्शन करेगी, और ये जो डिस्ट्रक्शन है ये फाइनली डिजास्टर करेगी। इसलिए हमें मध्य प्रदेश का यदि प्लान ठीक से सोचना है तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रक्शन एंड डिजास्टर फ्री डेवलपमेंट। डिजास्टर फ्री डेवलपमेंट जब होगा जब आप अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा में ये समझ लें कि हमारा जो ज्ञान था वो ये था कि ये जो प्रकृति हमें मिली है जिंदा रहने के लिए, ये हमारे पुरखों ने हमें दी है, और हम इस प्रकृति को, जो भी इस प्रकृति से ले रहे हैं, वो अपने बच्चों का उधार ले रहे हैं। हम उन बच्चों से उधार ले रहे हैं जिनको हमें दे के जानी है, पर हमें जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिएगा इस प्रकृति से। तो जब हमारा इस प्रकृति से लेने का भाव ये रहेगा कि हम जो कुछ ले रहे हैं वो अपने बच्चों का कर्जा ले रहे हैं और मुझे जीते जी ये कर्जा चुका के जाना है, ये जो भाव है ये इस प्रकृति के साथ लेने और देने के रिश्ते ठीक करता है। और प्रकृति में जो बीमारी है, अभी सचमुच यदि आप देखें तो बहुत जगह, अभी मध्य प्रदेश में तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन देश के बहुत सारे राज्यों में हमारी प्रकृति आईसीयू में भर्ती है। आईसीयू समझते हो ना, हॉस्पिटल का आईसीयू में भर्ती है। इसलिए इस प्रकृति को इस वक्त हमें जिंदा रहना है तो इस प्रकृति का ठीक से इलाज करना पड़ेगा, और ठीक से इलाज है अडेप्टेशन, इस प्रकृति के साथ प्यार से जीना। When we start with love and respect to the nature, जब हम प्रकृति को प्यार और सम्मान से जीने लगेंगे तो वो हमें प्यार से जिंदा रखेगी। बस मुझे इतना ही कहना है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने इस सत्र में बताई, और आपका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उसके लिए। और अब समय कम होने की वजह से हम क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे ऑडियंस से, पर मैं क्विकली एक समराइज करता हूं, कोशिश करता हूं। सर ने जो आज बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे बताए हैं, अगर हम लोग को जल संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में आगे काम करना है तो जो प्रकृति को हम लोग एडाप्टेशन की, सर ने बात करी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे हम लोग एडाप्टेशन के साथ में दोहन ना सोच करके जो हमारे स्रोत हैं, शोषण। देखो, दोहन और शोषण का फर्क समझ लो। इस हॉल में जो भी बैठा है उसने सबने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो दूध पीना है दोहन, गाय का दूध निकाल के पीते हैं वो है दोहन, और जब हम खून निकाल के पीने लगते हैं तब होता है शोषण। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आज हम दोहन नहीं कर रहे, शोषण कर रहे हैं। माँ हमें बहुत प्यार से अपने गोबे देती है, दूध पिलाती है, तो वो भी पसंद करती है अपने बच्चे को दूध पिलाना, उसको दोहन कहते हैं। तो दोहन और शोषण का फर्क समझ लीजिए। दोहन अगर हम ज्यादा करने लगे तो शोषण हो जाता है। तो ये शोषण को हम लोग कैसे देखें और ये प्रकृति के साथ मिलकर के कैसे रहा जा सकता है, तो वो, और साथ में जो इम्पोर्टेंट बातें थी कि भी जो समुदाय हैं, समुदाय का साथ में कैसे कोलैबोरेशन किया जा सकता है, कैसे एस्पिरेशन उनका ट्रिगर किया जा सकता है, जिससे कि वो मिल करके इस प्राकृतिक संसाधन के लिए काम कर सकें। दूसरा जो सर ने बताया, डिसेंट्रलाइजेशन, जो लोकल संस्थान हैं, पंचायत हैं, लोकल संस्थान हैं कम्युनिटी के, उनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ये लोकली जो भी संरचनाएं हैं उनको अपना समझते हुए उसका साथ में ठीक से रहना, उसका रखरखाव करना। और तीसरा जो चीज़ मुझे लगा बड़ा इम्पोर्टेंट था कि आधुनिक तकनीक के साथ साथ हम लोग को जो हमारे पारंपरिक तकनीक है, जो हमारी इंडिजिनस टेक्निक्स रही हैं, वो हम लोग कहीं ना कहीं भुला देते हैं। तो कैसे हम लोग दोनों का एक अच्छा मिश्रण देखते हुए
एक इस तरह का तकनीक का इस्तेमाल करें जिससे कि हम लोग प्रकृति को साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ न करके उनको जो हमारे संसाधन हैं उनकी रक्षा कर सकें। तो आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मध्य प्रदेश के लिए आगे चलकर बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आज हमारे साथ में ऑडियंस में समुदाय से भी लोग हैं, सरकार से लोग हैं और जो प्रैक्टिशनर्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सभी लोग जो इस क्षेत्र में ग्रामीण समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, सभी लोग हैं। तो आशा करता हूं कि ये सत्र आप लोगों के लिए प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा होगा। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज ये समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो इनसाइट्स शेयर करी बहुत यूजफुल थी। थैंक यू। धन्यवाद नीरज जी और हार्दिक आभार आदरणीय राजेंद्र सिंह जी का। उन्होंने अपनी उपस्थिति, अपने महत्वपूर्ण विचार और संस्मरणों से इस यादगार बनाया। बहुत कम शब्दों में आभार प्रकट करने के लिए हम जितेंद्र पंडित जी को आमंत्रित करते हैं। जितेंद्र जी आए, आभार प्रकट करें और उसके बाद हम पैनल डिस्कशन के लिए विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करेंगे। समय कम है, लेकिन मुझे लगता है कि वाकई क्यों राजेंद्र सिंह जी को जल पुरुष कहते हैं। पूरे सभागार में जैसे जल जीवंत हो उठा उनकी उपस्थिति, मुझे ऐसा लगा। और खासकर उनके बताए गए जो सारे प्रयास हैं, और उसमें जो नीरज भी अभी कह रहे थे कि सामुदायिक प्रयास जो हैं, सरकार, समाज, बाजार, सबको मिलकर इस जल को संचय करने के जो प्रयास करना है हम लोगों को, वो शायद मुझे लगता है कि एक बड़ी ही अच्छी अप्रोच और मेथोडोलॉजी पे उन्होंने बात किया। मैं धन्यवाद दूंगा सर को। कल से सर काफ़ी एक सेकंड और लूंगा आपका, क्योंकि कल से काफ़ी परेशान हुए सर। कल आगमन उनका कल था यहाँ भोपाल में, कल पूरी रात जागे हैं और आज सुबह की फ्लाइट लेके यहाँ पहुँचे। कल रात बिल्कुल नहीं सोए, उसके बावजूद उनकी जो ऊर्जा है वो देखने में समझ में आती है कि जो उनका पर्पस ऑफ लाइफ है बचाने का, जल के संरक्षण का, वो कितना उनकी जीवन में महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, और धन्यवाद नीरज। थैंक यू सो मच।